Hello students, now again I welcome in the new video of your chapter ratio and proportion. So up till now we have solved exercise 7.1, so now we will move to exercise 7.2. So before moving to next exercise, first we will learn about some terms. First is proportion. So proportion में basically हमारा क्या होता है, whenever दो रेशोज हमारे गिवन हैं, सो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन. लाइक आपको दो रेशो गिवन है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. जब टू रेशोज की हम इक्वालिटी करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. एंड all A B, A is called first term, B is called second term, and C is called third term, and D is called fourth term. फर्स्ट एंड फोर्थ को जो बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म्स बोलेंगे. एंड बी एंड सी को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म या मीन्स टर्म. ओके, सो अगर जो मैं यहाँ से निकालूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट रूल. दोनों एक्सट्रीम्स को मिलाएंगे, दोनों मिडिल टर्म्स को मिलाएंगे. सो दिस इज so and this D is called fourth proportional. Now I will talk about a new term like which is called continued proportion. So continued proportion का मतलब, suppose you have three quantities A B C. So अगर जो A का B से रेशो एंड B का C से रेशो हमारा सेम है, so this is called continued proportion. एंड अगर जो क्वांटिटीज़ मैं बढ़ा दूँ, लाइक सी डी ई कर दिया, सो सी रेशो डी इज इक्वल्स टू डी रेशो ई. सो इस तरह का जब हमारा कोई भी रेशो लिखा होता है तो हम उसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं. दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं. यहाँ पे ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी है, बट दो अलग अलग रेशोज़ हैं, दोनों हमारे इक्वल हैं. एंड यहाँ पे हमारा देख, जो हमारा ये जो डिनोमिनेटर टर्म है फर्स्ट रेशो का, वही हमारा सेकेंड का न्यूमरेटर टर्म होगा. So this is how you can differentiate. Now if I talk about only first two, so now if I cross multiply this, I get b square is equals to ac. So अब यहाँ पे कुछ हमारे टर्म्स हैं. a को हम फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन हमेशा c को बोलते हैं, एंड b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन. सो remember this thing, because I think in many questions you will deal with this mean proportion. You are asked to calculate mean proportions. So I think now you are clear about what actually mean proportion means. So without taking too much time, I will like to move to the exercise, and वहाँ से आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स. एंड आपको क्या दिया हुआ है, हमारा प्रोपोर्शन दिया हुआ है, दैट इज़ दो अलग अलग रेशोज़ हैं. सो 10:35 एक्स अपॉन 42. रेशो को तुरंत हम ऐसे लिख लेंगे. एंड नाउ you need to just cross multiply it. जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, you will get the result for the x. So I'm not going to discuss these questions in detail again. So in the next question number 2, you have to find the fourth proportional. So fourth proportional means D. So means 3:12 is equals to 15:D. आपको ये given है. सो ये आ जाएगा आपका 3D, ये आ जाएगा 15 × 12. सो D इज इक्वल्स टू 15 × 12/3. सो ये 5 टाइम्स आ जाएगा, इट विल बी 60. सो योर फोर्थ प्रोपोर्शनल विल बी 60. दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग to question number 3, find the third proportional. Now only two quantities are given, which means ये basically हमारा ABC given है. So your A is equals to 5, B is equals to 10. So you know the formula that B square is equals to AC, and C is your third proportional. So B square करेंगे, it will be 100. A का value 5 आ जाएगा. So your C will be 20. So that is the required answer for C. So in this way you can calculate all remaining parts of question number 3. If you look at question number 4, you have to find out the mean proportion, which means you have to calculate the B.
सो यू नो द फॉर्मूला बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. सो ए आपका क्या आ जाएगा 5 एंड योर सी इज 80. सो यू गेट 400. सो अंडर रूट जब आप 400 का लेंगे जो result will be 20. So b is equals to 20. So this is how you can calculate the mean proportion. Now I will solve for the last question, that is fourth part. So your b square is equals to a minus b. एक तरफ मैंने लिख लिया, फिर क्या आ जाएगा आपका a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी. सो यहाँ से आई थिंक हमें a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा. सो विल गेट a minus b. So what you have, a minus b to the power 2 एंड ए स्क्वायर. इसका आपको क्या लेना है, अंडर रूट. नाउ अगेन यहाँ पे भी b है, सो मीन प्रोपोर्शन को मैं कैपिटल B से लिख लूँगा. सो कैपिटल B आप देख सकते हैं a माइनस बी की पावर 2 है. सो जब अंडर रूट लेंगे तो हमारा एक पावर बचेगा, वैसे ही a की पावर भी हमारी. सो दिस इज़ योर रिजल्ट ऑफ द मीन proportion. एंड यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन को मैं कैपिटल से इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यू हैव अ b here also, so I cannot write a small b. Now again question number 5. So you can solve question number 5 at your own. I'm not okay. A 12 16 b are in continued proportion. Find the value of a and b. So you should try at your own. If you have any difficulty, you can ask what number must be added to each the number so that they are in proportion. So proportion, so let x should be added. So क्या हो जाएगा, 5 plus x upon 11 plus x is equals to 19 plus x and 37 plus x. Now you just cross multiply and check for the solution. You will get quadratic equation in x which you can easily solve. Now question number 7th. So what number should be subtracted from each of the numbers so that the remainders are in proportion? Again I'm leaving this question. Now question number 8 are in proportion, then find the value of k. So k plus 3, again this question I don't think so is that difficult. 3k minus 7, 2k minus 3. Now you will just cross multiply it, so you get k plus 3. 2k minus 3 is equals to k plus 2 is equals to 3k minus 7. Now I will cross multiply it. टू के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 6k माइनस 9, 3k स्क्वायर minus 7k plus 6k minus 14. So now you can solve this equation I think. So क्या करेंगे हम, यहाँ पे सारी चीज़ों को आप उधर ले जाएं. So 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर, ये माइनस का 7k प्लस का 6k, यहाँ क्या बचेगा माइनस का k, एंड ये जो यहाँ से क्या आएगा हमारा प्लस का 3k बचेगा. सो जब इधर आएगा तो वो माइनस का 3k हो जाएगा. ये प्लस 4 है, माइनस 9 उधर जाएगा तो सो इट विल बिकम 13. सो नाउ यू हैव इक्वेशन 0. ये आपका k स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4k प्लस 13. So now you have to solve this equation and you will get the required value of k. You can use Sridharacharya formula. Question number 9th. If x plus 5 is the mean proportion between x plus 2 and x plus 9, what is the value of x? Which means x plus 5 का हमें स्क्वायर करके बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल करना है, बिकॉज मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग यही होता है. आई हैव टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, x plus 2 and x plus 9. So जब आप सॉल्व करेंगे अगेन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड ओके आई विल सॉल्व
एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा 9x आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 18, एक्स स्क्वायर विल कैंसिल, ये आपका 11 आ जाएगा. So now you can, very easy question, again you can solve it. What number must be added? Question number 10, again same, continued proportion, which means let x is added. So इसका मतलब क्या हो जाएगा, let x is added. So क्या आ जाएगा, 16 प्लस एक्स अपॉन 26 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स अपॉन 40 प्लस एक्स. सो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स. Find the two numbers such that the mean proportion between them is 28 and third proportion. Okay, now this question is interesting. So mean proportion between them is 28. So let numbers are x and y. Let numbers are x comma y. So mean proportion means 28. So क्या करेंगे हम, xy is equals to 28 square. So xy will become 28 is equals to 28 square is equals to, I think it will be 28 400, ये 64, sorry 128 आ जाएगा. So you will have 8, so 28 square means you have 784. So xy is equals to 784, that is your equation number 1. Now I will look for the equation number 2, and the third proportional to them is 20 to 24. So which means अगर जो उनके थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, so which means we have b square is equals to ac, and थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है, c. So मीन्स a की वैल्यू हमारी क्या होगी, a की वैल्यू को मैंने x अज्यूम कर रखा है. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू. एंड b की वैल्यू को मैंने y अज्यूम कर रखा है. सो ये y स्क्वायर आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, c की वैल्यू कितनी है आपकी, 224. दिस इज व्हाट यू हैव एज c, 224. This is your y square. So now you have two equations. This is your second equation. First equation मैं यहाँ पे लिख लूँगा, एक्स वाई इक्वल्स टू 784. एक्स वाई is equals to 784. So now if you see, if I divide both these equations, so I will divide on the next page. We have y square upon xy is equals to x into 224. 224 divided by 784. 784. सो यहाँ से आई थिंक y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. सो you have y into 784 x square into 224. सो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, okay, I think I have chosen a wrong path. You don't need to do all this. I'm just deleting it. हमें क्या करना रहेगा, ये जो हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं यहाँ से हमें y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है. वी हैव टू कैलकुलेट y इज इक्वल्स टू, और हमें x कैलकुलेट करना है, रादर आई विल कैलकुलेट x. सो x इज इक्वल्स टू, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, x इज इक्वल्स टू 784 अपॉन y आ जाएगा. सो दिस इज योर. नाउ आप क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इस इक्वेशन में, आई विल पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. सो व्हाट आई हैव इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 784 into 224
upon y. So you have y cube is equals to 784 into 224. So now 784 is the square of 28. So मैं लिख लूँगा इसको 28 into 28 224. If I solve this particular equation, I have, so 224 can be written as 28 into 8. You can check the calculation. Now I will take the cube root. So we have cube root 28 into 28 into 28 into 8. So 28 हमारा 3 times है, which means when we calculate cube root 28 एक ही टाइम बाहर आएगा हमारा. So y is equals to 28 into 2. So you have 56. So y की वैल्यू क्या आ गई? 56. Now you can easily calculate x from this particular equation. If you use this equation, you will get x, and after that you will calculate all the required values. So again, now question number 12. B is the mean proportion between A and C. B हमारा जो है mean proportion है between A and C. So क्या होगा हमारा? B square is equals to AC. That is given to us. Prove that A, C are in the proportion. So A and C. So हमें क्या करना है? AC is equals to A upon C is equals to A square प्लस बी स्क्वायर. ये प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है हमें इन दोनों को. सो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलेंगे, यू हैव अ लॉन्ग एक्सरसाइज सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस में हमेशा जो हमारा जिधर हमारे ज़्यादा चीज़ें दी होंगी उधर से हम कम चीज़ों की तरफ चलेंगे. इट विल बी ईजी फॉर अस. सो हम क्या करेंगे, वही अप्रोच करेंगे कि हम इस वैल्यू से वी विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू और इससे हम ए अपॉन सी लाने की कोशिश करेंगे. अगर वैसा आता है, इट्स वेल एंड गुड. सो ये हमारा LHS हुआ एंड ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ. सो मैं क्या लिखूँगा? टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS. सो यू हैव A square plus B square upon B square plus C square. सो A square एंड B square की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? AC. अगेन यू हैव B square is equals to AC एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा C square. सो टेकिंग A as common, so we have A plus C. Again taking C as common, again we have A plus C. Both will be cancelled. So A upon C is the required result. So you can see that LHS is equals to RHS. So it is proved. Now question number 13. B is the mean proportional between A and C. So B हमारा जब mean proportion है, so we have again B square is equals to AC. So you have to prove that AB plus BC is the mean proportion between ये. So which means, मतलब ये हमारा mean proportion है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे. AB plus BC का स्क्वायर is equals to product of these two terms, A square plus B square and B square plus C square. ये हमें प्रूफ करना है. So again you have two sides. This is your LHS and this is your RHS. So जैसा कि मैंने आपको कहा था, you will have to follow a route जहाँ पे हमारी ज़्यादा से कम चीज़ों की तरफ. तो यहाँ लगभग दोनों बराबर हैं. You can follow any given path, but I will मैं यहाँ से इस चीज़ को प्रूफ करना चाहूँगा. So again taking RHS, RHS. So now your RHS is A square plus B square and B square plus C square. This is your RHS. So मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ. ये A square plus B square हो जाएगा, A square plus C square हो जाएगा,
बी टू द पावर 4 आपका हो जाएगा, एंड यू हैव बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो you have to focus a lot in this particular question. So आप देख सकते हैं हमें ये चीज़ से यहाँ पे जाना है. दिस इज़ द थिंग वी हैव एंड वी हैव टू गो फ्रॉम दिस टू दिस थिंग. सो इसका होल स्क्वायर होना है. सो होल स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक साथ हमारा आएगा. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ आप देख सकते हैं हमें मिल रहा है. नाउ बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा. सो यू हैव बी स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर देयर. ये आप देख सकते हैं ये आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब दो टर्म्स मिल रहे हैं. फिर जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो एक हमारा टर्म आता है 2ab वाला. सो वी हैव 2ab स्क्वायर सी. आई थिंक दिस टर्म. सो अभी हमें क्या करना है इस इन दोनों में से, बिकॉज ये टर्म तो हमारे ऑलरेडी आ ही चुके हैं प्रूफ में, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए. इन दोनों में से हमें ये टर्म लाना है. इन दोनों को सॉल्व करके दीज टू टर्म्स वी हैव टू सॉल्व, एंड हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है 2ab स्क्वायर सी में. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ अब फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास था वहाँ से था बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा हुआ है. सो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बी टू दी पावर 4 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे तो हमारा पावर दोनों का 1 था, बट यहाँ पे पावर दोनों का क्या है 2 है. सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पावर 2 लाने के लिए इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा एंड इसका भी स्क्वायर करेंगे. सो ये पावर हमारा क्या हो जाएगा 4. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड ये हमारा बी टू दी पावर 4 हो जाएगा. तो ये हमारा 2b टू दी पावर 4 हो गया. नाउ गोइंग एट द नेक्स्ट पेज. So what we have is a square b square, a square b square, a square b square, and sorry plus b square c square. So plus c square b square 2 b to the power 4 को b square into b square लिख लेंगे. So we have a square b square c square 2. इस b square की जगह हम क्या लिख लेंगे ac into b square. So now इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी टू द पावर 2. सो दिस इज अगेन योर दिस इज इक्वल टू एल एच एस. सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव योर पॉइंट. Now if y is the mean proportion between x and z, then prove that again y is the mean proportion, so which means you have y square is equals to xz. Remember this equation. So now you have to prove x y z x plus y plus z to the power 3 is equals to x y y z प्लस जेड एक्स की पावर क्यूब. सो ये आपको प्रूव करना है. नाउ आई विल सॉल्विंग फ्रॉम LHS एंड गो टू द राइट हैंड साइड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई सॉरी ये एक्स जेड है. ये एक्स जेड हमारा मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, तो इसकी जगह मैं वाई क्यूब लिख सकता हूँ. सो वाई क्यूब सॉरी वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ. इन एक्स जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर. एक वाई यहाँ ऑलरेडी है. सो ये हमारा वाई क्यूब हो जाएगा. सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब. नाउ यू कैन सी दैट पावर्स आर सेम. सो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं y को ब्रैकेट के अंदर ले जा सकता हूँ. इन ब्रैकेट के अंदर ले जाने का मतलब y जो होगा इन तीनों पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो नाउ यू हैव एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई जेड क्यूब. आई थिंक थिंग्स आर क्लियर बिकॉज यहाँ पे y एंड इन दोनों की पावर सेम थी, तो y को मैं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड होल पावर लगा दूंगा. नाउ यू हैव एक्स वाई यू हैव वाई जेड एंड वाई स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ अगेन एक्स जेड. सो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ
एक्स वाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, एक्स जेड plus yz to the power 2. Now you can see that this is what you have to prove. So I think again question is clear to you now. So these parts I think are a bit difficult also, especially when you solving for the first time. Now moving to question number 15. This is the last question for this particular video. You have a plus c. You have a plus c is equals to mb 1 upon b plus 1 upon d is equals to m upon c. So prove that a, b, c, d are in proportion. नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आपके पास सिर्फ एक लिंक है इन दोनों इक्वेशन में, ये जो हमारा m है वो हमें m को एलिमिनेट कर देना है बस. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन से m की वैल्यू आई थिंक मैं कैलकुलेट करूँगा. सो m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a प्लस सी अपॉन बी. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर m. नाउ ये m की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे एंड वन मोर थिंग यू मस्ट डू, इस c को आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो c इस b के न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड d के भी न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो दीज टू थिंग्स, ये दिस इज योर m. नाउ आई विल राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ m in the equation. So एंड नाउ अगर मैं c से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई थिंक c कुछ ऐसे आ जाएगा. सो नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू जो आएगी आपकी, योर m विल बी इक्वल टू a प्लस सी अपॉन बी. m will be equal to a plus c upon b. So now taking bd as LCM, so यहाँ से क्या आ जाएगा, cd आ जाएगा प्लस bc आ जाएगा, यहाँ से a प्लस c आ जाएगा into b आ जाएगा. So now cross multiplying again, so we have b cd प्लस bc एंड ये आपका आ जाएगा bd a प्लस सी. सो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सी बी डी प्लस बी स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू ए बी डी प्लस बी डी सी plus BDC. Now let's see what we can do. So now you can see that there is a common term, यहाँ पे CBD है and यहाँ पे भी तीनों वही term है. So both these will be cancelled. I think you are clear about that. Now यहाँ से देख सकते हैं एक हमारा b है यहाँ पे and यहाँ पे b square है. So I will cancel it. Now what you have is BC is equals to AD. So this is a bit familiar result. I think आप लोगों ने ये रिजल्ट कहीं ना कहीं देखा हुआ है. चलिए मैं याद कराता हूँ एग्जैक्टली ये कहाँ पे देखा है. जब हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे व्हेन आई स्टार्टेड डिस्कसिंग. सो प्रोपोर्शन का मतलब होता था a अपॉन बी एंड c अपॉन डी. सो ए एंड डी को मैंने एक्सट्रीम टर्म्स बोला था एंड ये बी सी हमारे मिडिल टर्म्स होते थे. सो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट ए डी बी सी. सो ये दोनों चीज़ें किस में है, प्रोपोर्शन में है. और इनको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या इसी को जब मैं थोड़ा और सॉल्व करूँ सो ये हमारा बी को मैं ऑपोजिट ले जाऊँगा. सो ये ए अपॉन बी आ जाएगा एंड यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सी अपॉन डी. So this is what you have and this is what was the condition for the, this is what which was the condition for the things to be in or quantities to be in proportion. So this is what we get. So now we have proved question number 15 also. So
Now I'm closing this video, and we have solved up till question number 15. Now we'll move further in the next video. Thank you.